Distressing details have emerged about Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP Swati Maliwal's gruesome ordeal at Delhi CM Arvind Kejriwal's residence. According to a copy of the FIR accessed, Maliwal has accused Kejriwal's personal secretary, Bibhav Kumar, of attacking her. Swati Maliwal, in her FIR, claimed that while waiting to meet Chief Minister Arvind Kejriwal at his residence, Bibhav Kumar approached her and began hitting her without provocation. He slapped me 7 to 8 times at least while I continued screaming. I pushed him away to protect myself. At that time, he pounced on me, brutally dragged me, and deliberately pulled my shirt up, Maliwal stated. Describing the severity of the assault, she states that despite informing Kumar she was on her period, the assault continued. Bibhav Kumar did not relent and attacked me by kicking me repeatedly in my chest, stomach, and pelvis area with his legs. I was in extreme pain and kept telling him to stop and go. Following the assault, Maliwal called the emergency number 112 to report the incident. Then when Kumar realized that I had called 112, he went out of the room. Bibhav came back with security personnel working at the main gate of the CM camp's office. They came and asked me to leave at the behest of Bibhav. I kept telling them that I was brutally beaten up and they should look at my condition and wait until the PCR police comes. However, they asked me to leave the premises. I was taken outside the CM residence and I sat briefly on the floor outside the house as I was in deep pain, Maliwal recounted. When the PCR police arrived, Maliwal, still in shock, left the premises and walked towards her previous residence in civil lines. Meanwhile, Chief Minister Arvind Kejriwal has remained silent on the matter. During a press conference in Lucknow, flanked by Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and AAP Rajya Sabha member Sanjay Singh, Kejriwal avoided commenting on the issue. स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आप जो आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोल दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। The BJP has attacked Kejriwal for his silence on the matter, raising questions about how he handled the incident and the response from the AAP leadership. The fact that Swati Maliwal 3-4 दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था और आज भी शायद होगा, फिर भी वो सामने आकर के कंप्लेंट कर रखी है। सो हाँ, जरूर there is reason to believe that there was enough pressure on her and probably continues to be on her. आप सीएम पद में है जी, अब तक एक सीएम उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। महिला दिल्ली में पूरे के पूरे सामने आकर के ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो बात सच में बोल रही हूं, दिल्ली में जितने भी महिला है उनके मन में यही चल रही है कि ये सीएम क्या महिला को सुरक्षा देगा।
उनके घर में महिला को पिटाया, उनके घर में जो राज्यसभा एमपी है उन्हीं को पिटा रहे हैं और प्रश्न अभी तक उनके दिमाग में चढ़ा नहीं है। और इसमें एक विषय जोड़ रही हूं, पूरे जिम्मेदार सीएम है, मगर फिर भी उस आप पार्टी के ऊपर एक विषय बोलना चाह रही, जिस पार्टी के एक वन एंड ओनली लीडर, क्योंकि फाउंडिंग लीडर सब तो भाग गए, अभी बचा हुआ सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, और वो बचा हुआ अरविंद केजरीवाल महिला के खिलाफ है, महिला को पिटाई करने वाले नेता है। मगर उनके पार्टी का चरित्र देखिए, 1 मिनट में मैं हाईलाइट कर रही हूं इस विषय में, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हम सबका निशान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया से मैं पूछ रही हूं, क्या प्रश्न पूछेंगे? नहीं, जिम्मेदार वो खड़े रखना नहीं है उनको। मगर उस पार्टी का देखिए हालात, मेरे बगल में, मुझे आज गर्व से कह रही हूं, शाजिया इल्मी, वो जो आम आदमी पार्टी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हुए महिला नेता है, उनका बयान भी है इसमें। उनके बयान से मैं शुरू कर रही हूं। क्या था उनका बयान? हर महिला नेता या पुरुष नेता भी सिंपली बाहर निकालेंगे नहीं, बाउंसर से पिटवाएंगे या पीआ से, उनके पीए से पिटवाएंगे, आदमी को जलील करके निकालेंगे। कोई सीधा रास्ता बाहर जाने के लिए नहीं है। और शरद चौहान जो एमएलए हैं, सोनी मिश्रा के सुसाइड के विषय में आरोपी है, वो भी आम आदमी पार्टी।